शुरू होने के बाद में फिर थोड़ी फॉर्मल बातें करनी पड़ती है। So do we need to see those two paragraphs once again? Let us see, no problem. Let me share it first and then I'll open it. Class 10th. Sermon at Banaras is in the other book, na? First flight or the other book? First flight. First flight. First flight only. File print out. That is lesson number 10. 10. Okay. Yes. So present your entire screen. Here we are. Of those who overcome by death, depart from life, a father cannot save his son, not kinsmen, their relations. See, of those who overcome by death, who overcome by death, depart from life. Actually, everybody departs from life. Everybody is at one point of time overcome by death. It cannot be avoided. And no one can save anybody, whether you love that person, whether you care for that person, whether you're ready to do anything for that person, or you are going to miss that person so much, but can't be avoided at all. A father cannot save his son, one thing. ना ही कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को बचा सकता है. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one, mortals are carried off. Mortals are carried off. Carried off means taken away once a person is dead. So for that funeral, for that cremation, that person, that dead body. Sir? Yes. Sir, what is the meaning of lamenting? What is the meaning of Lamenting. lamenting? See, अरे यार ये लिखा तो है यहाँ पे lamentation दिख रहा है? सर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मीनिंग ओके, हाँ ठीक है, इससे बेटर मैं समझा देता हूँ, है ना. क्या होता है at somebody's death or at a great loss, रोने की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं. ये भी एक रोना ही है, लेकिन ये कैसा वाला रोना है? क्रंदन, समझते हो? आप को दर्द हो रहा है कहीं पे, तो आप कराहते हो.
ठीक है। पेन की वजह से आपका रोना एक अलग होता है, कहीं बॉडी पेन है, कहीं कोई फिजिकल रीजन है, वो एक अलग होता है। कोई चीज का लॉस हो गया, यू हैड वाटर बॉटल and you lost it and you're weeping. You had a ball and you lost that ball and you are weeping. ठीक है। ये लैमेंटेशन जो है ना, ये वो एक्सट्रीम सॉरो है जहां पे somebody who is very close to you, who you are very affectionate to, or you somebody who is a loved one for you, and if you are left bereft, है ना, तो उस वक्त जो क्रंदन, जो जो जिस तरीके का रोना आपका होगा बहुत दुख के साथ में, दैट इज लैमेंटेशन। ठीक है। तो जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो रिलेटिव्स जो हैं, व्हाट हैपेंस, दिस लैमेंटेशन टेक्स प्लेस, दे लैमेंट डीपली। ठीक है। और उस लैमेंटेशन के बीच में मॉर्टल्स जो हैं, दे आर कैरीड ऑफ वन बाय वन, लाइक एन ऑक्स that is led to the slaughter. Slaughter, perhaps you all know, a place where that animal is supposed to be slaughtered, killed, slain for the purpose of using the beef, using the flesh. Okay? So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. Afflicted with, again यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। हर एक के ऊपर होता है इसका इफेक्ट, सबके ऊपर होता है। लेकिन हम एक बात ये भी समझते हैं कि सबके साथ होता है, तो जिसके साथ हो रहा है उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ उसी के साथ हुआ है। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है, तब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ना, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, हम गीता में भी यही पढ़ते हैं, बिकॉज डेथ इज अनअवॉइडेबल। तो फिर ग्रीविंग ऑन डेथ और एट द लॉस ऑफ समबडी इज नॉट अ वाइज एक्ट, ये कोई समझदारी नहीं है, वो तो सबके साथ होना है। क्योंकि ये क्या चीज है, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इसी कंडीशन पे आप पैदा हुए हो। ठीक है। यू आर सेंट टू दिस अर्थ ऑन दिस कंडीशन ओनली कि वन डे यू विल हैव टू डाई। अगर आपने ये टर्म्स और कंडीशन पे पहले साइन नहीं किया होता, ऊपर ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले आपने ये परमिशन नहीं दी होती कि आपने गॉड को ये परमिशन दे रखी है कि एक टाइम आएगा, जब भी टाइम आए तब आपने परमिशन दी है कि हाँ आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है। अगर आप ये परमिशन नहीं देते तो आप डाउनलोड ही नहीं होते। ठीक है। तो ये तो टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग will anyone obtain peace of mind. Again, a very important statement. Worth asking in examination for explanation. ना तो रोने से और ना दुखी होने से, आप कितना ही रो लो, कितना ही दुखी हो लो, यू आर नॉट गोइंग टू ऑब्टेन और अटेन पीस ऑफ माइंड। आपको उससे शांति नहीं मिलने वाली। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। अगर आप उसके बाद भी बहुत दुखी होते गए, बहुत रोते गए, बहुत अपने आप को कष्ट देते गए, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि द बॉडी विल फर्दर सफर। दूसरी प्रॉब्लम अपने ऊपर और आप कर लोगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। आप अपने आप को बीमार कर लोगे, कमजोर कर लोगे। ठीक है।
येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। और आप कितना ही रो लो, जो डेड है उसको आप वापस नहीं ला सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। आपको ये तीनों चीजों से, ये जो आपके अंदर जो एक एरो घुस गया ना इन तीन चीजों का, उसको आपको निकाल लेना पड़ेगा। क्या है ये चीजें? लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जो composed है, मतलब जो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर पाता है, जो कूल रह पाता है, जो एक्साइट नहीं होता, जो नर्वस नहीं होता, ठीक है, ऐसा इंसान जो है वो, उसको क्या मिलेगा? पीस ऑफ माइंड। ना कि रोने वाले को, शिकायत करने वाले को, दुखी होने वाले को, है ना, उनको नहीं मिलेगा पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड उसको मिलेगा जो कंपोज्ड है, काम है, ठीक है, जो, जिसका सेल्फ कंट्रोल है, जो इन चीजों को प्रैक्टिकली समझता है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। देखो, overcome all sorrow will become free from sorrow। यहाँ पे दो चीजें आई हैं, overcome sorrow and free from sorrow। क्या डिफरेंस है दोनों में? बताओ। Overcoming sorrow and becoming free from sorrow, what is the difference? तो शायद कि ओवरकमिंग मतलब हमें सॉरो था, हमने उसको पार कर लिया, और फ्री फ्रॉम सॉरो मतलब बाद में कभी सॉरो हुआ ही नहीं। आधा ठीक है, आधा आधा गड़बड़ है। और कोई ट्राई करेगा? सर ओवरकम सॉरो करने के बाद ही फ्री फ्रॉम सॉरो हो सकता है। ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, वो तो वहां लिखा ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ओवरकमिंग सॉरो एंड बिकमिंग फ्री फ्रॉम सॉरो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर फ्री फ्रॉम सॉरो का तो ये मतलब है कि पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उस पर कोई अच्छा। डिबेट ही नहीं हुआ है बाद में। और ओवरकमिंग सॉरो यानी मतलब हमें कुछ दुख हुआ और फिर उसके बाद हमें कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए, या फिर हम कहीं ट्रेवल करने गए, या मतलब डिस्ट्रैक्ट किया अपने माइंड को, तब ओवरकम किया, वो अलग चीज होती है। ओवरकम करने को तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो, और किसी को कुछ बताना है, ट्राई करना है कुछ अच्छी सी चीज? बहुत सारे बच्चे हैं, इट इज अ कंबाइंड सेक्शन। 64 बच्चे होने चाहिए, हैं कितने आई डोंट नो। 52। 52 हैं, इट्स गुड नंबर। Is Sachi there? Yes, sir. Speak. Try to differentiate between these two things. After Sachi, Saurabh, and after Saurabh, Mitushi. यस सर, फ्री फ्रॉम सॉरो मतलब हमेशा के लिए दुख का ख़त्म हो जाना, कभी भी आगे दुख आए तो वो इंसान को इफ़ेक्ट ना करे। और ओवरकम फ्रॉम सॉरो मतलब उससे उभरना, मतलब वापस अगर दुख आया तो उससे पार करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फ्री फ्रॉम सॉरो मतलब हमेशा के लिए फ्री। ठीक है, मीनिंग आपने काफी करेक्ट बताया है। ठीक है, उभरना एक बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज किया। ओवरकमिंग सॉरो इज व्हाट शी सेड, दुख से उभर उभर जाना। उभरना बोलते हैं, उबरना बोलते हैं?
उबरना शायद, हाँ उबरना शायद, जो भी है ना। हाँ सौरभ। यस सर, ओवरकमिंग सॉरो मीन्स कि मतलब हमें मतलब पहले किसी चीज का दुख हुआ है, हमने उस दुख को झेला भी है, लेकिन फिर कैसे ना कैसे करके मतलब अब हमें उस चीज का दुख नहीं है। हम उससे और बाहर आ उस गए। हाँ मतलब अब उस दुख के बाहर आ गए, तभी ओवरकम हुआ मतलब सॉरो। और ठीक। फ्री फ्रॉम सॉरो मतलब कि सॉरो है ही नहीं, मतलब हमें दुख है ही नहीं। तो ये इसलिए लिखा है यहाँ पे कि ओवरकम सॉरो, मतलब इफ अ पर्सन हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। क्योंकि अगर उसे पता मतलब जब वो उस दुख को सह लेगा, उसको पता चल जाएगा कि इस दुख का कुछ मतलब नहीं है, तो आगे कभी भी कुछ ऐसा होगा तो उसको इस चीज का दुख होगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। ओके, लास्ट अटेम्प्ट बाय मितुषी। Overcome of all sorrow means cross all sorrow, and he diverted them. One diverted their mind from sorrow, but free from sorrow means जब वो उस बारे में सोचेंगे तभी उन्हें कोई sorrow नहीं होगी, और he is free of all sorrow. जितने भी बच्चों ने जो भी ट्राई किया, ज्यादातर चीजें आपने सही बताई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इनमें से आपको किस किस चीज के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा? टू ओवरकम सॉरो और टू बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो? Overcome. यस, आपके एफर्ट की जरूरत कहां पे है? Overcome sorrow. ओवरकम सॉरो, इसमें आपका एफर्ट है। ओके, एंड फ्री फ्रॉम सॉरो ये क्या है? ये स्टेट है, ये स्टेट है। डू यू एग्री? Yes, sir. दिस इज अ स्टेट, यस सर। है ना। ये आपका स्टेटस हो जाएगा, व्हाट्सएप स्टेटस हो जाएगा आपका, या फेसबुक स्टेटस हो जाएगा, है ना। ये आपकी स्टेट हो गई, दैट यू आर फ्री फ्रॉम सॉरो। लेकिन ये स्टेटस आप कब अटेन कर पाओगे? जब आपने एफर्ट लगा दिया, एफर्ट किया टू ओवरकम सॉरो। अब ओवरकमिंग सॉरो मतलब कुछ एक अच्छे वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं, कि दुख से उबरना। तकलीफ हुई, अब वो तकलीफ लेके बैठे रहो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्यों हुआ, क्यों हुआ, वाई वॉज गॉड सो अनकाइंड, यू स्टार्टेड कंप्लेनिंग। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग? You are holding yourself in that state of sorrow. Am I clear? Yes, sir. Sir. है ना, you are holding yourselves. और अगर आपने उस वक्त जो भी हुआ, डेफिनेटली आप दुखी हुए क्योंकि इट वॉज अ लॉस, लेकिन आपने उसको भी टर्म ऑफ द वर्ल्ड, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, ये इस जगह पे टर्म ऑफ द वर्ल्ड मान के आपने उसको एक्सेप्ट किया कि इफ दिस वाज टू हैपन इट कुड नेवर हैव बीन अवॉइडेड। अगर इसको होना था तो फिर इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, होना था तो फिर हुआ। ठीक, एंड व्हाट इज बिगॉन इज बिगॉन। जो हो गया वो हो गया। ठीक है, अब क्या? तो अब आपने अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की और आपने क्या बोला कि फाइन, दिस लॉस कैन नॉट बी फुलफिल्ड, बट दिस लॉस शुड नॉट अफेक्ट द लाइफ अहेड।
ये आपने समझ लिया। फिर आपने यहां से खुद को कंट्रोल किया, इस स्टेट से आप अपने आप को बाहर लेके आए, एंड यू स्टार्टेड मूविंग अहेड। अब क्या किया आपने? आपने उसको एक्सेप्ट किया, कंप्लेंट करना बंद किया, you came out of that grief, you stopped lamenting. That means you overcame loss, you overcame that sorrow. Once you did that, once you successfully put that effort of overcoming that sorrow, you have attained the status of becoming free from sorrow. You attained freedom from sorrow. आपने जब कोशिश की तो आपको उस दुख से सच में मुक्ति मिल गई। ठीक है, अब आप उस दुख से मुक्त हो गए। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। सर हमने यहाँ पे इतना लंबा ब्रेक क्यों लगाया? हाँ बेटा, एक सेकेंड। इतना लंबा ब्रेक क्यों लगाया हमने, इतना डिस्कशन क्यों किया? बिकॉज ये स्टेटमेंट्स ऐसे हैं दैट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर एक्सप्लेनेशन, या फिर एक्सट्रैक्ट्स में आ सकते हैं। ठीक है, यस, somebody was asking something. Who was that? सर हाँ, drawn बोलो। out the arrow means? तीर को निकाल लेना, जो एरो आपके अंदर घुसा हुआ है ना, उसको बाहर निकालना। अभी वो कौन सा एरो है? कौन सा एरो है? कंप्लेंट। ये तीन चीजें हमने देखी थी, देखो इसी में कहीं। हाँ, कंप्लेंट, लेमेंटेशन और ग्रीफ। एक सेकंड, ये रहा, दिख रहा है? ये मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पे। यस सर। है ना? तो एरो कुछ नहीं है, ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है ना, कि ये जो चीजें होती हैं वो आपके हार्ट में उस तरीके का पेन पैदा करती हैं जैसा कि एक एरो, पॉइंटेड शार्प एरो लगने से होगा। इसलिए इसको एरो कह रहे हैं हम। दुख का, तकलीफ का, शिकायतों का जो तीर आपके अंदर चुभ रहा है, उसको निकालो बाहर। आप इसको तीर बोलो, आप इसको कांटा बोलो, या भाला बोलो, या त्रिशूल बोलो, ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक वो चीज दैट कॉजेस पेन, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा बाहर। जब आप उसको बाहर निकालोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट सॉरो, एंड देन यू विल अटेन द स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सॉरो। इज दैट क्लियर, नेहा? यस सर। Okay. Anything else? No sir. Okay. If the entire lesson or the entire sermon by Lord Buddha is clear to everyone, we can move ahead. Questions are all very good in this, so you should try to write answers to all these questions. आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो। ठीक है? When her son dies, Kisa Gotami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? एक सिंपल क्वेश्चन है, 3-4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और सारे आपको पता है कि वो क्यों गई थी, what was the reason. Then what was she asking for? Does she get that all? And if she couldn't, what was the reason that she couldn't get that fistful of kya tha? Mustard seed. Another question is, Kisa Gotami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for? Just a minute. Did I misunderstand first question?
Yes, sir. The answer Yes. to that would be the answer for second question. Yes, yes, yes. When Kisa Gotmi goes from house to house. फर्स्ट केस में अलग रीजन था, सेकंड केस में अलग रीजन था. यस Yes, यस sir. इन फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन, में वो पूछने गई थी ना कि यस, मैं क्या फॉर करूं, मेरे मेडिसिन, बेटे को कोई ये कर दे, मेडिसिन के लिए गई if somebody, मेडिसिन yes, पूछने के लिए गई थी. somebody can save her son by giving some medicine, and second time it was for mustard seeds. Yes, sir. Yes, yes, yes. Okay. So दो बार गई थी वो. Good. Again I started forgetting. What does Kisa Gotmi understand the second time that she failed? हमने realization की बात की थी in the previous Yes, sir. one, कि उसको एक realization हुआ था, हमने बात भी किया था शायद, है ना? तो वो जो realization था उसका, वो क्या था? ठीक है? This thing she couldn't understand first time, but second time she understood. That means she realized. Was this what the Buddha wanted her to understand? Exactly, yes. Yes. है ना? Why do you think Kisa Gotami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, and it's an again open question. आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो. आपको क्या लगता है सेकेंड टाइम में क्यों समझ में आया? Why couldn't she understand that at first, and how could she understand that when she went for the second time? What is the reason? सर फर्स्ट टाइम में उसको पता ही नहीं था किसी और का पेन सॉरो, सो उसको सिर्फ अपना था. तो उसको बाद में पता चला जब बुद्धा ने उन्हें बताया कि वो मस्टर्ड सीड लाना है. सो दैट्स व्हाई. हाँ, first time she was thinking only about her own grief. She did not think that before her son, other people have also lost their loved ones. This was her complaint that her son was dead or badly ill, and she wanted to save her son's life. And for her, in the first time, her son was her world. ठीक है? And when she goes there second time, she finds out that this was not her individual personal grief. This was not a grief of her own, but everybody has one or the other time gone through this kind of condition. Everyone has suffered this pain. ठीक है? And the way Buddha changed her understanding is that he sent her. He could have told her this thing, but just verbally telling somebody who is in such an extreme grief, जो इतना ज्यादा दुखी है, उसको verbally आप समझाओगे, probably that person won't understand. So what was Buddha's way? He showed her everything practically. He showed her that there doesn't. Yes. He told her to go herself and understand what is happening with others as well. Yes. There isn't any household, there isn't any family, there isn't any person who hasn't ever lost anybody from his family. ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसके किसी ना किसी रिलेटिव की कभी ना कभी डेथ हुई हो, डेथ नहीं हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं. ये बात वो वहां बैठ के भी बोल सकते थे, बट ही वांटेड हर टू गो
एंड फाइंड आउट हर सेल्फ, कि आप कितना ही ढूंढ लो ऐसा आपको एक भी नहीं मिलने वाला है। तो फिर अगर आपके साथ हुआ है तो कोई आपके साथ कोई स्पेशल चीज नहीं हो रही है, वही हो रहा है जो सबके साथ होता है। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? इस पे तो आप पूरा आर्टिकल लिख सकते हो। योर आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू अग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? योर आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि डू यू एग्री विद दिस थिंग दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? यस सर। एक मिनट, ये यहाँ खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ, चलो मैं चैट सेक्शन में देखना चाहूंगा। यस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? राइट वाई, and those who think she was not selfish at all, write N. All have written Y. सबको लगता है वो सेल्फ। यार किसी ने N नहीं लिखा, हाँ लिखा है, स्नेहा ने लिखा है, ठीक है। अभी Y आते जा रहे हैं। 52 हो गए क्या? नहीं हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। एकलव्य जरा काउंट करके बता ना, 46 बच्चों में से कितने एक्चुअली क्लास में है? जरा Y और N काउंट करके बता तो मुझे, तो पता चले कि बहुत सारे सो रहे हैं या शायद इधर उधर हैं। अभी देखो ये जागे बहुत सारे, सी ये इतने सारे अभी बचे हुए थे। ओके, everybody thinks that she was selfish. Tell me, why do you think she was selfish? फिर मैं स्नेहा से पूछूंगा, because she doesn't think she was selfish. Those who wrote why can try and justify why do they think that she was being selfish. So, because she was thinking that only she has lost someone whom she loved, she was not thinking about everyone else that that everyone has maybe have lost someone or something, maybe someone or something they have loved so dearly. At that time, she was thinking that she was the only person who was going through such kind of sorrow and terrible experience that she has. That's why she was thinking that I am the only. She was feeling very depressed about it, but she didn't realize that everybody else has gone through it. बोलते जाओ और किसी को। बस। Now Sneha, your no. यस सर। सर आई थिंक वो सेल्फिशनेस फीलिंग नहीं थी, वो इमोशनल फीलिंग थी जो उसे सिर्फ अपना उसका सन दिखा था, क्योंकि वो किसी के और उसने कभी किसी का ग्रीफ देखा नहीं था। बट वो सेल्फिशनेस नहीं हो सकती, वो उसके बेटे के प्रति उसका लव हो सकता है। एक बात बताओ, यस सर। आप लोग प्लेग्राउंड में कुछ खेल रहे हो, सारे बच्चे खेलते हुए आप नीचे गिर गए, आपकी एक टांग टूट गई, ठीक है? टांग टूट गई मतलब बिल्कुल पूरा एक फ्रैक्चर, बहुत दर्द हो रहा है।
ओके, अब आप उस दर्द की वजह से वहां पे रोने लग जाते हो, आप लोगों से हेल्प मांगने लग जाते हो कि भाई मुझे उठा के सिक रूम तक ले जाओ, या मेरे लिए व्हील चेयर या स्ट्रेचर लेके आ जाओ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरा ट्रीटमेंट करवाओ, मेरे लिए मेडिसिन अरेंज करो, मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। आप ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो लोगों से, क्या ये सेल्फिशनेस है? नो सर। क्या आपकी जब टांग टूटी है तब वहां बैठ के आपको ये सोचना चाहिए कि दीज आर टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी को कभी भी तकलीफ हो सकती है। कई लोग गिर चुके हैं, कई लोगों की टांग टूट चुकी है। 1947 में एक बार एक की टांग टूटी थी, 1948 में एक बार एक की टांग टूटी थी, 1949 में एक बार एक की टांग टूटी थी, वहां उस कॉलोनी में एक की टांग टूटी थी, वहां पे एक की टांग टूटी थी। जब लोगों की टांगें टूटती रहती है तो मेरी भी टूट गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? एंड यू स्टॉप ग्रीविंग। क्या नेचुरली ऐसा होता है? यस सर। होता है ऐसा? आप ये सोचते हो कि नहीं, मुझे चोट लगी कोई बात No, नहीं? sir. नहीं नहीं नहीं। No, sir. नहीं होता ना। तो उस वक्त अगर आप दुखी हो रहे हो, मोमेंट्री, ठीक है, उस मोमेंट पे इफ यू आर फीलिंग सैड, if you are grieved, if you felt that sorrow, if you felt that pain, if you asked for help, if you asked for medicine, if you asked for medical assistance, if you asked some of your classmates to get a stretcher for you and carry you out, you started demanding for the help and you started weeping, you started telling everyone that you are feeling that pain. तो ये सेल्फिशनेस है क्या? सृष्टि ने कुछ लिखा है, आई रीड इट आफ्टरवर्ड्स। अभी मैं सबसे पूछ रहा हूं, इज दिस सेल्फिशनेस? नो सर। No, sir. No, sir. तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कीसा गोतमी, who lost her son, and at first she did not realize that she has actually lost her son. If she realized this thing, she wouldn't have asked for a medicine. She was asking for medicine. That means she thought that her son was unconscious but not dead. She thought if treated properly, her son would survive. What is wrong in that? What is wrong in that? Is this selfishness? No, sir. नो सर। नहीं है सेल्फिशनेस? नो। लेकिन after visiting all those households for the second time, when she had that realization, with that realization, Kisa Gautami herself has this right of calling herself selfish. After the realization, तब कीसा गौतमी को खुद ये अधिकार है कि वो अपने आप को सेल्फिश बोले, कि उस वक्त वो सेल्फिश थी, क्योंकि अब उसको रियलाइजेशन हो गया।
अब ये रियलाइजेशन कब हो गया? When she accepted the death of her son and she stopped grieving for that. But दो बातें हैं. पहली बात, by the time a mother or any person realizes this thing, that the other person is dead, it is his duty, it is his responsibility to do everything that he can or she can to save the life. Let us say mother, जैसा कि कार्तिकेय बोल रहा है, let us say mother, मैं तो यहाँ पे ही एक जनरल उसमें बोल रहा हूँ कि कोई भी हो, मदर हो, फादर हो, कोई और रिलेटिव हो, इवन फ्रेंड हो, जब तक आप इस चीज को नहीं रियलाइज कर लेते कि दैट पर्सन इज डेड, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करो उसको बचाने की. तो वेयर वॉज द मदर रॉन्ग? अच्छा, उसने रियलाइज कर भी लिया होता फर्स्ट गो में कि हर सन वॉज डेड, तो क्या मां को दुखी भी नहीं होना चाहिए? ऐसा कौन हो सकता है जो किसी रिलेटिव की डेथ के बाद, अरे भाई आपको तो, जो आपके रिलेटिव नहीं है तब भी अगर आप किसी की डेथ देखते हो तो एक मोमेंट तो आता है when you are grieved, because you all have got human heart. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. है ना? किसी अननोन के लिए भी होता है. तो वहां तो रिलेटिव की बात है, हर ओन सन, तो ग्रीफ तो आएगा. रियलाइजेशन इस चीज का है, वो मोमेंटरी ग्रीफ तो होगा, वो तो एनिमल्स में भी होता है, आपके डिस्कवरी वाले सारे एनिमल्स में होता है. कई बार आप देखते हो बर्ड्स में होता है. A bird lays an egg in a nest, and during the period when the bird is hatching it and all, if that egg falls, breaks, have you seen the reaction of the bird? कभी ऐसा कहीं मौका मिला है आपको उस बर्ड का रिएक्शन देखने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो सब में होता है. कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिलेटिव, और वो भी वो माँ थी, हर सन इफ इज डेड, और वो फटाफट ये बोले चलो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है. वो तो अनफीलिंग मदर हो जाएगी, इमोशनलेस मदर हो जाएगी, है ना? तो हम उसको सेल्फिश नहीं बोल सकते. वो खुद बोल सकती है कब? जब उसने ये रियलाइज कर लिया था कि वो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और लोगों को परेशान कर रही थी. उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था. ये बात कहने का राइट उसके पास है, खुद को, है ना? तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ऐसे होगा कि एट दैट मोमेंट दिस वाज नॉट सेल्फिशनेस एट ऑल. और ये जितना हमने एक्सप्लेनेशन, जो भी डिस्कशन अभी किया, ऑल दैट इज नीडेड देयर. बट फिर साथ में हम ये लिखेंगे कि व्हेन एवरीवन वाज टेलिंग दैट हर सन इज डेड, he is not alive anymore, there is no life left, there is no possibility left, they were trying to console her, and at the same time they were trying to persuade her that her son cannot come back to life. When she lost this ability to understand, this was because of her selfishness. Is it clear now?
वो सेल्फिशनेस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, it is already 2:49. If I continue to talk, then it will be selfishness. ठीक है? Because it is another teacher's time for you now. I have also got another class. So let us stop it here.